Namaskar friends, welcome to RS Utkarsh English. A heinous crime has come to the fore in Bhilwara, Rajasthan. Two people who were awarded recently a death sentence by a special court under POCSO. It has been revealed that a child at the age of 14 years, she was raped and she was thrown away in a coal furnace, specifically in an unconscious condition. Because of that, she couldn't scream and she burned to her death. Many of her family, when they went out to look for her, they were searching for her. They could find only a footwear and a charred bracelet. एक bracelet ही मिला था. अब उसी के बेसिस पे ये बात हुई कि ये बच्ची इसे जला दिया गया और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आया है. स्पेशल कोर्ट ने अब इन दोनों व्यक्तियों को डेथ सेंटेंस बता दिया है. Protection of Children from Sexual Offences Act specifically claims that if anybody is raping any person who is below the age of 18, then they can be liable for a heinous punishment, a rigorous punishment. We are going to talk about it. See, rape as an offence was actually added in the Indian Penal Code back in the year 1860 when it was properly codified by Lord Macaulay. And two codes were brought along with it. The IPC in 1860, which was in the force in 1862. Thereafter, the Code of Criminal Procedure in 1861. It deals with the procedures and the investigation. How the procedure of investigation will go on, that is accorded by the CRPC. And rape as an offence was put in the IPC. So according to section 375 of the IPC, it is clearly suggested that it is the act of sex by a man with a woman punishable. It is punishable if it is done without consent or against her will. Obtaining consent by fear of death too is a crime, and sex with a minor who is below the age of 18, minor is somebody who is below the age of 18, is always rape. Sex with a wife above 15 is not rape. However, this leads to the problem of marital rape. We are going to talk about that as well. Actually, marital rape is another aspect. We are going to talk about it in detail if something of that sort comes. Now, protection of children from sexual offences. Full form of POCSO is that only. Protection of children. Who is a child? Anybody who is below the age of 18 from sexual offences. This includes not only rape but also molestation, penetrative or non-penetrative sex, skin to skin sex, everything is included over here. Who is a child? A person who is below the age of 18, remember that. And it was enacted on 14th November 2012. 14th November is Children's Day and the year is 2012. It abides by the United Nations Convention on the Rights of Children for 1992. This convention was adopted. India is a signatory to it, and as well as India is a legislator and a ratifier to it as well. तो इंडिया ने इसके लिए जो डोमेस्टिक लॉ बनाया है, इससे समझ में आ गया कि इस कन्वेंशन में हमने सिर्फ सिग्नेचर ही नहीं किया, हमने साथ ही साथ इस पर रैटिफिकेशन भी की है. दूसरी चीज़, इट एड्रेसेस ऑफेंसेस ऑफ सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्शुअल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन. इवन अगर पोर्नोग्राफी भी कोई स्टोर करता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो वो भी क्या रहेगी, वो भी सेक्शुअल ऑफेंसेस में ही इंक्लूड होगी. ठीक है, विच वर ईदर नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड और एडिक्वेटली पेनलाइज. पहले या तो इनका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं था या तो इसकी पेनल्टीज भी बहुत सख्त नहीं थी. इसमें एक्ट ने डिफाइन साफ साफ किया है कि कौन एक बच्चा कहलाएगा जो 18 साल से नीचे की उम्र का होगा. पहली चीज़ तो ये एक्ट प्रोवाइड करता है जितनी ग्रेविटी होगी पनिशमेंट उतनी, मतलब जितना ग्रेविटी का क्राइम होगा उतना बड़ा पनिशमेंट होगा. तो यहाँ पे तो रेप भी था, साथ ही साथ इतनी बुरी तरह से जिंदा जला दिया गया था. देयर आफ्टर इट वॉज अमेंडेड इन द ईयर 2019 में इसको अमेंड करके और स्ट्रिंजेंट बनाया था. डेथ पेनल्टी 2019 में ही आई है. तो ये अगर पूछा जाए कि कब आई है अंडर द आरएएस एज वेल, जब 2019 में इस एक्ट का अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद डेथ पेनल्टी भी इंक्लूड कर दी गई थी फॉर कमिटिंग सेक्सुअल क्राइम्स ऑन चिल्ड्रन. और फिर रूल्स भी आए थे, पॉक्सो रूल्स इन द ईयर 2020. इसके अलावा अगर हम बात करें कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ जेंडर न्यूट्रल इन नेचर, यानी कि इसमें जो विक्टिम होगा वो भी इधर कुड बी अ बॉय और कुड बी अ गर्ल. और इसमें जो परपिट्रेटर भी है, यानी कि जो क्राइम कर रहा है, इसमें परपिट्रेटर एक मैन भी हो सकता है
और एक वुमन भी हो सकती है, इसीलिए ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ माना जाता है। यहाँ पे पॉक्सो में क्या है ना कि बहुत ईजिली रिपोर्टिंग हो जाती है केसेस की। यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं जिसकी वजह से स्पीडी जस्टिस मिलता है, और स्पीडी जस्टिस को इंश्योर क्या होता है, स्पीडी जस्टिस अगर मिलेगा तो लोग और इजीली आएंगे अपने केसेस रिपोर्ट करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, यहाँ पे डेफिनेशन बहुत एक्सप्लिसिटली बताई है, बच्चा छोटा बेबी कौन है या फिर एक चाइल्ड कौन माना जाता है। इसके बाद अगर परपिट्रेटर है वो जेंडर न्यूट्रल है, साफ साफ बता दिया गया है कि ये ओपन टू ऑल है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि पोर्नोग्राफी भी अगर कोई स्टोर कर रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो वो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस में आता है। तो ये सारी चीज़ें भी बता दी गई हैं। इसके अलावा क्या क्या और इनिशिएटिव्स लिए हैं बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए। फर्स्ट तो चाइल्ड अब्यूज़ प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, तो ये बेसिकली एफिशिएंटली सारी इन्वेस्टिगेशन करेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सो दैट स्टूडेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन और गर्ल चिल्ड्रन दे आर इनकरेज्ड टू नॉट बी जस्ट किल्ड एंड मैरिड अवे। ये अलग अलग ऑफेंसेस हैं, मतलब सिर्फ इसमें सेक्सुअल नहीं है, बाकी फीमेल फीटिसाइड भी इसमें इंक्लूडेड है, उसको भी रखा गया है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015, आई विल कवर दिस स्पेसिफिकली टुमारो फॉर यूपीएससी उत्कर्ष, उसमें जाके आप देख सकते हो। यूपीएससी उत्कर्ष में मैं इसको स्पेसिफिकली अभी कवर करूंगी क्योंकि पूरे में आपने एक केस देखा होगा, व्हेन अ ड्रिंक एंड ड्राइव केस happened, a 17-year-old person who was 17 did not have the proper license to drive. He was drinking and he killed 2 people by accident. We will talk about that as well. Child Marriage Prohibition Act 2006. Now this act is also very important from the perspective of your examination, specifically RS. So make sure that you watch my first class of analysis which I took, in which I said that it is the duty of the Sarpanch according to the Rajasthan High Court to ensure that if any child marriage is happening in a village, it should be stopped and prohibited by the Sarpanch and the Panchayat. It's their duty. It has been said by the High Court. You have to watch that. For Child Labor Prohibition and Regulation Act 2016, POCSO courts under the Special Fast Track Court. तो इसी के इन्होंने ही मतलब इस स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ही डेथ सेंटेंस सुनाया है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल एंड प्लीज डू शेयर दिस विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।